Good morning, students. Now today we are going to start up with a new chapter, that is force and laws of motion. It is chapter number 9th of your NCERT book, and the name of the chapter is force and laws of motion. So in our previous videos we have studied about motion, what is motion, and we have also studied about what is a linear motion and how does velocity, acceleration, etc., etc., they vary according to the uniform motion and non-uniform motion in the linear motion as well as in the circular motion, etc., etc. But what is the root cause of motion? What causes any object to come in motion? All these queries were not cleared out in that chapter. So today in this chapter we are going to study that what is the root cause of motion, and not only the root cause, what changes the direction of the motion, and etc., etc., or what brings any object into acceleration. Clear? So all these queries or quenches, they are going to get cleared within this particular chapter. So whenever we are going to talk about motion, for many centuries it was thought that any object, when it is in the position of rest, it tends to be in that very particular position. That means if an object is in a rest position, it tends to be in the rest position, and if an object is in position of the motion, then it tends to be in the position of motion. But this is not very true, because after many of the philosophers and scientists, they have worked upon these theories, and after the work of Galileo and Isaac Newton, it became very much clear that it is not according to this theory that if an object is in motion, then it need to be in motion, and if it is in rest, then it tends to be in rest. But there are certain of the things which are required to bring any object in motion. For example, if you are taking a ball, and if you are hitting a ball not very hardly, very softly, if we are hitting the ball, then we see that the ball moves only for a certain distance of the time. But if we hit up the ball very hardly, then we can see that the ball covers up a very long distance. That means that some forces have been applied on that very particular ball. So when we are talking about motion, a thing which is required is the force. So when we are defining the force, it is not the exact definition but explanation of the force. When we are talking about the force is any external energy which is applied on any object to bring it into motion. That is known as force. It is not the exact definition, it is only just the explanation of what is a force. So there need to be certain of the external energy which should be applied to any of the object to bring it into certain state of motion. For example, if we see that a fan is moving around, then there has to be some energy, and the energy which is present behind the moving of the fan or the motion of the fan is the electrical energy. Clear? Accordingly, the movement of the vehicle, etc., that is all dependent upon various types of the energy, that is the mechanical energy. Clear? Then again, when supposedly this is the marker pen, it tends to be in the rest position until and unless some external force is applied on it. If I am applying some external force, then it tends to be in state of the motion. If I am just pushing it up very slightly, then it covers up a very small distance. But if I am pushing it very hard, then it is going to cover up a very long distance according to the amount of the external force that is applied on it. ठीक है? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है, ठीक है, मूव करने से पहले वो रेस्ट पोजीशन में होता है, वो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहता है जब तक मैं उस पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई न कर दूं या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई न कर दूं. सपोजली दिस इज द बॉल, ठीक है,
इस वॉल के ऊपर मैं कितना भी फोर्स अप्लाई करूँ, मेरी जितनी भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मुझ में जितनी भी है, मैं उस पूरी एनर्जी को उसके ऊपर अप्लाई कर दूँ, तब भी ये वॉल जो है इट वोंट कम इनटू अ स्टेट ऑफ मोशन। रीज़न क्या है इसका कि जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर मैं उतना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स या एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ जितना कि उसको वॉल को मूव करने के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग what to say any object into motion. ठीक है, and that very particular considerable amount of the energy which is required to bring into any object into motion is said to be the force. Clear? Forces जो है वेरिड टाइप के होते हैं एंड अकॉर्डिंगली वेरियसली वो अप्लाई भी किए जाते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए नहीं किया जाते हैं, बल्कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करने के लिए भी किया जाते हैं, चेंज ऑफ द शेप करने के लिए भी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बलून है, इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो बलून है, अगर आप अपने दोनों हैंड्स के बीच में उस बलून को पकड़ते हो और पकड़ने के बाद में दोनों तरफ से उस बलून के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते जाते हो तो बलून जो है वो अपना जो रेगुलर शेप है उससे डिफॉर्म होकर के अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, मतलब दोनों तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग वो डिस्टॉर्ट हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। सो अगेन यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई मैंने किया है वो किसके लिए किया है? फॉर डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर बलून। ठीक है, अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल दूसरा दे देती हूँ मैं आपको, जैसा कि एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग जो होता है नॉर्मल एक एक्सपेंडेड कंडीशन में होता है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो स्प्रिंग्स के जो टर्न्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ उस पे से स्प्रिंग पर से रिमूव करूंगी तो क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, मीन्स इट रिगेन्स इट्स पोजीशन बैक इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? सो this is all about the forces, that how forces can be applied to bring about any object into motion. Clear? Now the next thing is forces की जब हम बात करें, forces जो हैं इनको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? सपोजिटली कोई टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, कोई वुडन ब्लॉक हो सकता है, और उस वुडन ब्लॉक के दोनों तरफ यानी ए सरफेस और बी सरफेस दोनों ही तरफ मैंने एक एक स्ट्रिंग बांध कर रख दी है। ठीक है, अब क्या है कि मैं स्ट्रिंग ए को पुल अप करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्सेस जो हैं वो पुश के फॉर्म में हो सकते हैं, पुल के फॉर्म में हो सकते हैं, हिटिंग के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी तरह के फॉर्म में हो सकते हैं। गेटिंग माय वर्ड्स? जब हम पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है हमसे दूर जाता है, जब हम पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे करीब आता है। गेटिंग माय वर्ड्स? तो अकॉर्डिंगली ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। क्लियर? सो जब मैं बात कर रही हूँ किसी वुडन ब्लॉक की, और वुडन ब्लॉक के दोनों तरफ मैंने दो थ्रेड्स बांधे हुए हैं ए एंड बी, अब मैं ए थ्रेड को पुल करना स्टार्ट करती हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी में अगर लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ए साइड की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने ए वाले स्ट्रिंग को छोड़ दिया है, अब मैं बी स्ट्रिंग को पकड़ती हूँ और इस बी वाली साइड से मूव करना इसको पुश करना स्टार्ट करती हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ना जा करके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है, दैट इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पुल। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात हो गई है कि जब एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट जो है इट टेंड्स टू मूव, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पर एक ही तरफ जो है फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जब मैं एक तरफ ऑब्जेक्ट को पुल कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है या फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से लगाया जा रहा है। ठीक है, बी साइड से नहीं लगाया जा रहा है। क्लियर? इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो कहलाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है इट हैज बीन सेट इनटू मोशन। गेटिंग माय वर्ड्स? इसी तरह से जब मैंने बी साइड से ऑब्जेक्ट को पुल करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट जो है बी साइड में मूव करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स ऑन ए सरफेस, यानी ए सरफेस में यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ बी सरफेस पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है बी साइड में मूव करना स्टार्ट करता है। दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस दे आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अगर मैं
दोनों ही स्ट्रिंग को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस से खींचना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है, अपनी ही ओन स्टैटिक पोजीशन पे रहता है, ठीक है। इस तरह की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, या इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। गेटिंग माई वर्ड्स? सो this becomes very clear from this fact कि unbalanced forces they what to say make any they set up any object into motion, whereas the unbalanced forces they set up any object into motion, but the balanced forces they do not set up any object into motion. Clear? Accordingly एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के साथ में, कि सपोजिटली एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ वुड है या ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसको बहुत 3 या 4 बच्चे जो हैं उसको पुश या पुल करना स्टार्ट करते हैं। सपोजिंगली वो पुश कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज जो वो ऑब्जेक्ट है, 2 बच्चों की तरफ से उसको पुश किया जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन चूंकि वो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस इज रफ, कंडीशन होनी चाहिए कि सरफेस इज रफ, इफ द सरफेस इज रफ इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फोर्स, बच्चे जो है चिल्ड्रन दे आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्कअप करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यानी ये दोनों जो फोर्सेस हैं, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये क्या करेगा, ये ओवरकम कर देगा एक्सटर्नल फोर्स को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करता है। और आइदर वी कैन से दैट इट इज बैलेंसिंग, द फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंसिंग द एक्सटर्नल फोर्स एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग मूव्ड from its own position from its own position, ठीक है। फर्दर ऑन बच्चे और ज़्यादा इसमें फोर्स लगाते हैं, तब भी ऑब्जेक्ट पुशअप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है अभी भी ओवरकम नहीं हुआ है, इसने अभी भी इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर दिया है। फर्दर अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जब बच्चे लगाते हैं, चिल्ड्रन लगाते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मूव करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाता है कि अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया है और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स जो है इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देता है और ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपकी डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलता है। सपोजिंगली जब आप साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग के दौरान आप पैडलिंग करते हैं, ठीक है। जब आप पैडलिंग कर रहे होते हैं तो आपका साइकिल जो है कंटिन्यूसली मूव ऑन करता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके पैडलिंग फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है और वो आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक बैलेंस है फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में भी और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में भी, जिसकी वजह से वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है आपका साइकिल जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पैडलिंग फास्ट कर देते हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड है इट बिकम्स फास्ट, इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो जाता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पैडलिंग फोर्स से या एक्सटर्नल फोर्स से ओवरकम हो जाता है एंड जो आपका बाइसिकल है वो उसकी जो स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, या फिर उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो उसका स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा या फिर उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। गेटिंग माई वर्ड्स? सो ऑल एंड ऑल आर दीज द एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन what to say define forces। अब ये तो मैंने बात की थी जब सरफेस रफ है। अगर सरफेस रफ नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्या होता है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो तो चूंकि सरफेस रफ नहीं है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी कैसा होगा, नील होगा या वेरी लेस होगा। इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हल्के से स्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के साथ भी अगर आप मूव ऑन करवाते हो तो भी वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता जाता है,
गेटिंग माई वर्ड्स? सपोजिटली जैसे कि आजकल टाइल्स की फ्लोरिंग होती है, तो इजीली आप देखते हो कि उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इजीली मूव ऑन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। अकॉर्डिंगली अगर व्हाट टू से किसी स्लोप से कोई बाइसिकल नीचे आ रही है, देन इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर स्लोप है, वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अपने आप इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मूव कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो है विद अ ग्रेट स्पीड वो मूव करना स्टार्ट करता है डाउन टुवर्ड्स द स्लोप। Clear? So in this what to say video, I have explained you all what is force and what are the significances of the forces and what are the utilities of various kinds of the forces. In my next video, we are just going to move ahead with the first law of motion and further on. Till then, thank you.